इसका वीडियो ऑन करो जूम का। Hello everyone, I hope you all are able to see me, and again welcome to Devghar IAS Academy, DIA DNF, Daily News Feed, and I am going to discuss again important headlines with the input, how to prepare for the exam, कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, क्या क्या करंट एस्पेक्ट में जो हिंदू पेपर इंडियन एक्सप्रेस में आ रहा है वो सब मैं अभी कवर करूंगा वन बाय वन. दिस विल बी कवर्ड वन बाय वन. So we are doing this exercise just to help you support कि how to go ahead with the prelims exam and the main exam, topics of current relevance which is linked with GS. आज हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, एक बहुत एक्सपर्ट टीचर है, हिदायतुल्लाह सर जुड़े हुए हैं. हिदायतुल्लाह सर, very welcome to you sir. You can open your mic and video sir. Yes sir. Thank you sir. Thank you sir. Yeah, good evening sir, and I'm really very thankful to you for sparing your precious time. Yeah, so just students, I wanted to just tell you that Hidayatullah sir is a teacher of science and technology, faculty of science and technology. He teach in Hyderabad. तो सर हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं और ये सारी चीज़ें जो है सर बताएंगे पूरी चीज़. तो now without wasting much time, let us go to the first topic here. Today's newspaper has covered an article on AI, artificial intelligence. आप सबको पता है कि AI जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है, artificial intelligence जिस तरह से चीजें इवॉल्व कर रहा है, going to have a dramatic impact on everything. Now let me just read the headline here. क्या headline लिखा हुआ है? I'm just reading that. As artificial intelligence gets real, the word is real, gets real, firms move slow. Firms mean companies move slow and steady to win the race. AI software is becoming more and more advanced, but the companies which are developing, they are very precautious. They are not going very, very fast. Like Google AI, right? Open AI, which has come with Chat GPT. ये सारा चीज है. Now companies are excited about the possibilities unlocked by generative AI. Very important word, generative AI. Generative AI word. राइट, प्रेडिक्टिव एआई, जनरेटिव एआई, ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक जो है, एंड जनरेटिव एआई इज सेइंग दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. तो कंपनीज लाइक कॉर्पोरेट्स, बिग कंपनीज, एमएनसीज विच कैन अडॉप्ट सच काइंड ऑफ एआई टूल. तो यहां पर यही है कि पॉसिबिलिटीज अनलॉक्ड बाय जनरेटिव एआई इन द वेक ऑफ ड्रामेटिक अराइवल ऑफ चैट जीपीटी. 2 साल पहले, 2 years ago, चैट जीपीटी. टुडे वी आर यूजिंग चैट जीपीटी. Right, Chat GPT, but with tasks of complex nature requiring human oversight. Chat GPT हो या कोई भी AI tool है जहां पर human oversight चाहिए, supervision चाहिए. तो firms opt to head into 2025 with careful deliberation rather than rushing them. तो जो companies हैं वो AI को adopt करना चाह रहे हैं लेकिन बहुत carefully करना चाह रहे हैं. सर हिदायतुल्लाह सर, I wanted to know लाइक आप बता सकते हैं सबको कि एआई क्या है, मतलब एआई का क्या मतलब ब्रीफ में आप बता सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग राइट नाउ एंड नाउ नॉर्मल पीपल हु आर वाचिंग राइट नाउ कि एआई का क्या है और ये जनरेटिव एआई क्या है. व्हाट इज जनरेटिव एआई? जस्ट सर प्लीज सर थ्रो योर ओपिनियन ऑन दिस सर. यस सर. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यस सर. अभी जैसे आप थोड़ा कंप्यूटर एल्गोरिथम्स है, सो कंप्यूटर एल्गोरिथम से जो ह्यूमन ब्रेन जो एक्टिविटीज कर रहा है, तो उसी की तरह एल्गोरिथम्स प्रिपेयर करके जो ह्यूमन ब्रेन की तरह उसको ट्रेन करके. यस सर.
Yes, I can hear you, sir. हाँ, उसी तरह कंप्यूटर में थोड़े algorithms को, थोड़े सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशंस को अप्लाई करके उसको ह्यूमन की जैसा बात करने का है सर. फॉर एग्जांपल, अभी जो एक एग्जांपल दूंगा मैं, अभी तो क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में एक सॉफ्टवेयर कंपनी है. हाँ सर. से फॉर एग्जांपल IBM. So IBM Yes, sir. wanted to recruit some skilled persons. For example. Yes, sir. तो skilled persons को ट्रेन करना चाह रहे, तो उसके लिए एक 100 मेंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए एटलीस्ट they have to interview to nearly 1000 or 2000 candidates. Right, sir. Select 100 skilled persons. Yes, sir. जो ये मैन्युअली करना चाहे तो इसका टाइम बहुत लगेगा और इसका मैन पावर और पैसा सब कुछ लगेगा. Yes, sir. लेकिन ये 1000 या 2000 कैंडिडेट्स को सो एक ही बात बेस्ड ऑन देयर रेज्यूम, बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, सो दे विल स्क्रूटिनाइज दिस कैंडिडेट्स. Yes, sir. Yes, sir. जो ह्यूमन बीइंग टाइम स्पेंड कर रहा है, टाइम करके इतना ये कर रहा है, उसी को इस शॉर्ट पीरियड में सो करेंगे. फॉर एग्जांपल एक रेज्यूम अपलोड करेंगे, तो उसी के हिसाब से अब जो रेज्यूम में जो भी स्किल्स रहेगा, से जावा रिलेटेड, सी प्लस रिलेटेड जितना भी स्किल्स रहेगा, उस स्किल्स के हिसाब से वो क्वेश्चंस राइज करेगा. से फॉर एग्जांपल ये प्लेटफॉर्म, ये इंटरव्यू प्लेटफॉर्म बोलते हैं. राइट सर. तो उसी तरह हर कोई सब मिशनरीज रहे, सो सबको मतलब टाइम रिड्यूस करेगा सर. जो ह्यूमन ब्रेन जो वर्क कर रहा है उसी हिसाब से तो कंप्यूटर करेगा स्पीड. राइट सर. नहीं सर, वो ठीक है. अब मुझे आप ये बताइए कि वाई द कंपनीज आर सो स्केप्टिक्स, वाई दे आर नॉट विलिंग टू अडॉप्ट इट वेरी फास्ट. मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह इतना जल्दी इसको अडॉप्ट क्यों नहीं करना चाहते? जैसे यहाँ पे ये आर्टिकल है कि कंपनीज लाइक AI इज बिकमिंग मोर एंड मोर एडवांस्ड, बट कंपनीज आर नॉट दैट. इसके क्या पिटफॉल क्या है, क्या क्या नेगेटिव साइड क्या है? AI का नेगेटिव साइड क्या है? जैसे चैट GPT वगैरह, उसका नेगेटिव साइड क्या है? नेगेटिव साइड मतलब ब्रॉड पेमेंट जैसा. हाँ सर. जैसे कि इसमें अगर हम AI कोई कंपनी यूज करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं? व्हाट टाइप ऑफ उनको प्रॉब्लम ऐसा महसूस हो सकता है उसको करने के लिए, वो सारी चीजें जो है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे ह्यूमन की बात किया जा रहा है, कह रहे हैं कि मैन मशीन कैन टेक ओवर ह्यूमन, कि क्या ये सच में ये डर सही है कि मशीन कैन टेक ओवर ह्यूमन? जो हम फिल्मों में देखते हैं, मूवीज देखते हैं, जैसे चिट्टी, रजनीकांत ये जैसा क्या ये, हाँ, कि क्या सच में ये ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि AI सिस्टम कैन ओवरटेक ह्यूमंस? ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है? ये डर लोगों के मन में बैठा हुआ है. इज इट पॉसिबल देयर? यस सर, हो सकता है. क्यों बोले तो अभी जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है ना, तो वो एडवांस हो गया, तो ह्यूमन. राइट सर, राइट. नहीं, आई जस्ट थ्रो लाइट हियर. चैट GPT के बारे में यहाँ बताया, दिस आर्टिकल विच टॉक्स अबाउट कि आउट परफॉर्म ह्यूमन डॉक्टर इन डायग्नोसिस. जैसे डॉक्टर्स डायग्नोस एनी डिजीज, so this chat GPT was able to provide the same diagnosis what a human being as a doctor can do, that what an MBBS doctor can do and find out disease, कि whether a person has a cancer or HIV or malaria, this chat GPT can do that. This is very interesting thing given here कि यहाँ पर ये चीज़ है. और ये न्यूयॉर्क में ये किया गया यहाँ पर जो AI का है, लेकिन कुछ अभी भी फियर है कि AI का इनकन्सिस्टेंसी. अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग सर, हिदायतुल्ला सर, बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आपको शेयर करता हूँ. अभी आजकल व्हाट्सएप में मेटा करके आता है, अगर आपने नोटिस किया है, व्हाट्सएप हैज गॉट ए सर्कल मेटा. हाँ, मेटा AI जो है. अभी जस्ट इन US में देयर वाज वन पर्सन हु वाज टॉकिंग थ्रू मेटा AI चैट. तो यू विल सरप्राइज टू नो, मेटा AI जो व्हाट्सएप का AI है, asked that person to commit suicide. वो उस आदमी को बोला कि अगर आप ये नहीं करते तो जाके सुसाइड कर लो. was insisting that person to commit suicide. That is really dangerous. It's very dangerous that कि AI जो ऐप है वो ह्यूमन को समझ के और ह्यूमन को मोटिवेट कर दे कि आप सुसाइड करो, कमिट सुसाइड देयर. दैट वाज रियली वेरी, ये चीज़ जो लोग ये कह रहे हैं कि रिस्क है कि AI कैन एंटर आवर अंडरस्टैंड आवर थॉट प्रोसेस,
our thing and can even motivate just like we as a human being motivate each other. जैसे कि मान लीजिए कि आपस में हम लोग बातचीत करके एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, अब भविष्य में ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि एआई हमें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना चालू कर दे, दैट कैन बी पॉसिबल. और अगर एआई ने गलत ले लिया तो इट कैन बी डेंजरस टर्न देयर, तो दैट इज व्हाट रिस्क इज देयर. तो एक ये बहुत अच्छा आर्टिकल है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रीड दिस आर्टिकल which is talks about generative AI, which can generate all data like chat GPT and everything. Now without taking much time of sir, I am going to discuss another article, very very important one, this one. Because Hidayatullah sir has spared a very precious time, he has got class, but I have asked him to be present here. Chennai gets electronic stability control test track. You know, electric vehicle, EVs, right? A commercial vehicle now is getting electric vehicles, right? So what is the article now? See here, ZF Commercial Vehicle Solutions. This is the name of a company. CVS. India inaugurated a state-of-the-art electronic stability control test track in Chennai. Now, what is this test track? The track provides a controlled environment for rigorous testing of vehicle stability. Whether the car will be stable, right? Agile handling performance, certified by this TUV, Greenland and ARA. There's part of it, a part of here commercial vehicles. Sir, I wanted to just know from you one thing. Hidayatullah sir. Hidayatullah sir. So, Hidayatullah sir, I will be asking a question here, sir. Whether this like electric vehicles. So, this electric vehicle, how it can be really a game changer in future, sir? Hidayatullah sir. Okay. So Hidayatullah sir will connect very soon. So, but let me explain here something. Then I'll get back to Hidayatullah sir. That say any vehicle, when we make any electric vehicle, car making company, automobile company, they do testing of its components. जब भी कोई नई कार बनती है, चाहे जो भी नई कार हम बनाते हैं, तो उसके परफॉर्मेंस को हम टेस्ट करते हैं कि उसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है क्या प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी जो सेफ्टी पार्ट है, जो उसके सेंसर है कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है. उसके लिए चेन्नई में ये प्रॉपर बनाया गया ट्रैक है. व्हाट यू कैन सी द फोटोग्राफ हियर, ये जो ट्रैक आप देख रहे हो आप, इसमें क्या है कि जो कार है, जब हाई स्पीड कार चलता है तो क्या उसकी स्टेबिलिटी है, क्या वो स्टेबल रह सकता है रोड पे, क्या वहाँ डिस्टर्बेंस हो सकता है. तो ऑल दिस एरियाज, तो वो सारी चीज़ों को टेस्ट किया जा रहा है इसमें यहाँ पर. तो दिस काइंड ऑफ थिंग हियर रियली वांट टू हेल्प better performance of the vehicles. Now regarding electric vehicles, since we are not able to connect to Hidayatullah sir, but let me tell you here, EVs, battery operated cars is the future. Again, science and technology, electric vehicles, and already you know electric vehicles have come on the road. आज मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, आज यूज भी हो रहा है, और अब ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं जो कि कैन स्टे ऑन द रोड वंस द बैटरी सिस्टम गेट चार्ज्ड, कैन स्टे ऑन द रोड फॉर लॉन्ग टाइम. कम से कम इसमें नहीं तो वो व्हीकल लगातार जो है वो रन कर सकता है 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर. और आजकल हम लोग हाइब्रिड कार की बात कर रहे हैं. व्हाट इज हाइब्रिड कार? कि जो स्विच ओवर हो सकता है कि पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक. दैट मीन्स पहले आपने अपने बैटरी को चार्ज किया, इलेक्ट्रिक कार, यू रनिंग ऑन द रोड, ठीक है. जब आपको लगता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो यू कैन स्विच ओवर टू पेट्रोल, राइट. तो दैट काइंड ऑफ हाइब्रिड कार्स आर बीइंग नाउ मैन्युफैक्चर्ड. इंडियन गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, क्लीनर फ्यूचर, क्लीनर ट्रांसपोर्ट, राइट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन. जो कार्बन एमिशन हो रहे हैं, ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है कि जहां हम एमिशन को कंट्रोल कर सकें, राइट. तो वो सारी चीजों पे करते हुए, ध्यान रखते हुए ये चीज को किया जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कैसे काम करे. क्योंकि जब हम पेट्रोल या डीजल या इवन सीएनजी कार को यूज करते हैं तो वो बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, burning of fossil fuels generate carbon dioxide gas, oxides of nitrogen, then even particulate matter PM or fine particle of diameter 1.5, 2.5 or even 10 micrometer, है ना, PM 1.5, PM 2.5, PM 10 जो है, ammonia and other kind of toxic gases are emitted. तो global warming is now a big problem, greenhouse effect caused by greenhouse gases, pollution, air pollution. आपको पता है कि दिल्ली का भी क्या स्थिति है, दिल्ली एयर पोल्यूशन, राइट. लास्ट सेशन आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दोस काइंड ऑफ थिंग देयर. तो ये सब को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, क्लीनर ट्रांसपोर्ट, वी नीड सच काइंड ऑफ कार्स, ठीक है. तो वी नीड सम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग काइंड ऑफ थिंग. बट ये जो आप ट्रैक देख रहे हो,
इसमें नॉर्मल कार की भी टेस्टिंग की जा सकती है। Here normal cars can also be tested here, vehicle part, उसके सारे जो सिस्टम है एक्सेलरेट करता है, जो भी कॉमर्शियल कार्स होते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, कि क्या वो कितना स्टेबल है एंड अब दे आर सेफ, ऑल दिस सर। हिदायतुल्लाह सर, वेलकम बैक सर। हिदायतुल्लाह सर, so sir has some, one second, so हिदायतुल्लाह सर, कैन यू हियर मी? अच्छा, कोई बात नहीं, सर हैज सम नेटवर्क प्रॉब्लम देयर, बट अगेन आई जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद सर हियर। Just to take certain time from Hidayatullah sir to get some insight, and then I will carry with the topics there. हाँ सर, can you connect? अच्छा, जो नेटवर्क प्रॉब्लम है, अच्छा कोई बात नहीं सर, यू कैन लीव सर, आई विल कैरी ऑन सर। ऑलराइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो एवरीवन गाइस, सर हैज सम नेटवर्क प्रॉब्लम, सर इज समवेयर आउटसाइड, सर कहीं दूर है, कहीं ऐसे जगह जहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, और कोई सेशन में हम लोग सर के साथ जुड़ेंगे। इन कमिंग टाइम वी विल अगेन कनेक्ट विद हिदायतुल्लाह सर टू डिस्कस अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक्स, ठीक है। बट एनीवे, जो मैंने समझाया वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस आर्टिकल बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देयर, ऑलराइट। तो ये चीज़ को आपको पढ़ना है, इसलिए DNF डेली न्यूज़ फीड हम लोग उसको कंपाइल करके दे रहे हैं, ताकि सो दैट आपका टाइम बच जाए। योर टाइम इज सेव्ड इन रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ऑल दिस आर्टिकल्स विच आर कमिंग देयर, right? And I am covering the important highlight. Now, yesterday we have covered this Supreme Court judgment on socialism and secularism, है ना। इस बात पे हम लोगों ने चर्चा किया लास्ट। जो लोग अभी नए हैं यहाँ पर, प्लीज गो टू द यूट्यूब चैनल एंड प्लीज गो टू 26 November. That means 26 November's live session and the video there, video segment. There you will find we have a discussion on this part when Neelam Bhatia ma'am came to the session to discuss about this Supreme Court ruling on preamble, this preamble part, socialism and secularism, based on that. So we have already covered, but this article is again today, आज भी पेपर में आया हुआ है, from Indian polity this becomes very very important. तो उसको आपको फॉलो कर, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में कवर हुआ है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रियम्बल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सब लोग इसको पढ़ना। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रियम्बल एंड हाउ वाज इट, हैज इट इवॉल्व्ड। इसमें बैकग्राउंड दिया हुआ कि प्रियम्बल कैसे बना। प्रियम्बल बाद में ऐड किया गया था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद जब बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, लेटर ऑन दिस प्रियम्बल वाज एडेड। तो उसके बारे में हाउ व्हाट हैज बीन द कोर्ट स्टैंड अर्लियर, जैसे केशवानंदा भारती केस है ना। आप व्हेन यू रीड इंडियन पॉलिटी यू विल बी रीडिंग अबाउट केशवानंदा भारती केस वगैरह जो है। एंड यस्टरडे हम लोगों ने कवर भी किया है सारी चीज़ों को। एंड हाउ इज इट चेंज, करंट केस क्या है इसके ऊपर, कि जहाँ पर सेकुलरिज्म वर्ड को लेके इंटरप्रिटेशन वहाँ पर, और इसका क्या बेयरिंग ऑन द सोसाइटी, बहुत अच्छा है। सी सच काइंड ऑफ आर्टिकल रियली हेल्प यू, राइट, नॉट ओनली अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट, कोई भी हो, नॉट ओनली स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट, इवन फॉर नॉर्मल पब्लिक ऑल्सो देयर, एंड दैट यू नो दिस रियली हेल्प गेट द इंसाइट। तो यहाँ पर ये चीज है कि व्हेन यू कम टू दिस वन, ओरिजिनल प्रियम्बल अडॉप्टेड नवंबर 26, 1949, जो मैंने कल बताया था। एंड यू नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1950, 26 नवंबर 1950 वी सेलिब्रेट एज नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, राइट। तो यहाँ पर ये चीज, आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसियसली अवॉइडेड द वर्ड सोशलिस्ट, right, as they felt that declaring the economic ideal of a country in its constitution preamble was not appropriate. उस समय इकोनॉमिक आइडियल्स को ध्यान कि वो करना ठीक नहीं है, सोशलिस्ट वर्ड को अवॉइड किया था, ठीक है। इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म। कल नीलम मैम ने डिस्कस भी किया DNF में कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म है वो अलग है फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म। बट इज इन द वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या है, स्टेट एंड रिलीजन आर स्ट्रिक्टली सेपरेटेड, राइट, लेटर केस में जो है, and the government does not interfere in religious affairs. However, in India, भारत के केस में क्या है, in India the state enjoys the power to regulate the economic, financial, political and secular aspects associated with the religious practices. कि where the state can regulate, right? What state can regulate? Indian context में क्या है? If we talk about secularism, the state can regulate economic, financial, political and secular aspects of any religious practices. तो वहाँ पर ये चीज को समझाया गया है। Then current case was filed that oppose this word कि preamble में ये जो वर्ड है इसको हटा दिया जाए। तो इन 76 अमेंडमेंट
right? 1976, when this amendment was made in the preamble to add these two words, socialism and secularism, the socialist and secularist, यहाँ दिया हुआ है 76 में, socialist, secular and integrity, ये तीन word add किया गया था. And you know the court from time to time has always given the observation कि these are the basic structure of the constitution and cannot be amended, cannot be removed. तो यहाँ पे उसके बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है. And ये those are the students आपके लिए बहुत important है, because this will help you in writing mails answer there. And I am very sure कि आने वाले year में even prelims exam में question आ सकता है, that can be asked in the exam. So this is where you have the article here. So DNF को यहाँ पर now between hope and hurdles on the high sea. Now let's go to this article. Recently India has signed and joined a very important treaty called High Sea Treaty, right? United Nations, संयुक्त राष्ट्र का है ना high seas treaty जो. What do you mean by high sea? Now the question is that what do you mean by high seas? So now when you say high sea, so it's a very important here. High sea treaty जो है, this one, from environment ecology, this treaty becomes very, very important. Is an intergovernmental treaty, है ना, अंतर सरकारी संधि है, intergovernmental treaty is there. It comes within the United Nations preview. And what is very clear here in terms of regulation of activities, regulating human activities in high seas. Now when you say high seas, right, after 200 nautical miles, when you say open sea or high sea, that is the area of sea and ocean beyond 200 nautical miles away from the coast. Up to 200 nautical miles, you know, that is called EEZ, exclusive economic zone. एक इसमें treaty आता है, which you all know that, UNCLOS, United Nations Convention Law of Seas. UN की एक ऑलरेडी कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज, जहां पर 12 नॉटिकल माइल्स सोवरेंटी ऑफ ए कंट्री एग्जिस्ट है ना, एग्जिस्ट, किसी भी देश का एकाधिकार है ना, वो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, जहां डिफेंस, सिक्योरिटी, एवरी एस्पेक्ट कम होता है. टेरिटोरियल वाटर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ टेरिटोरियल वाटर. अप टू 200 नॉटिकल माइल्स is called EEZ, exclusive economic zone, where for economic purpose the country can regulate EEZ. Now after 200 nautical miles, after EEZ is the open sea and ocean. Now you know that nowadays high sea की अगर हम बात करें तो high sea, if you look at activities, अगर हम activities की बात करें तो there are lot of activities are there, economic activities are there. Like for example, one of the very important thing is the shipping industry, maritime trade, है ना. bulk of cargo, bulk of trade happens through sea route, है ना, पानी के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, वो शिप के थ्रू होता है, शिपिंग लाइन. मैरीटाइम ट्रेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड. तो हाई सी से होकर होता है. दिस वन एस्पेक्ट कम्स शिपिंग इंडस्ट्री. समटाइम यू नो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, हाइड्रोकार्बन, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, हाइड्रोकार्बन सर्च, कई बार डिपॉजिट ऑफ हाइड्रोकार्बन मिलता है, नेचुरल गैस लाइट्स और हाइड्रोकार्बन, उसको माइन आउट करने के लिए. मे बी हियर माइनिंग, हियर डीप सी माइनिंग, बिकॉज सी कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स देयर, मेटालिक रिसोर्स, लिविंग रिसोर्स, नॉन लिविंग रिसोर्स, दैट कैन बी देयर. और अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है कि देयर लॉट ऑफ थिंग विच इज हैपनिंग विद द हाई सी. अगर हाई सी की बात करें तो रिसेंट टाइम व्हाट हैज हैपेंड विद हाई सी, द पोल्यूशन पार्ट, यू नो, पोल्यूशन one of the big concern जो हाई सी का है, that is if you look at concerns here, shipping industry is one of the source of pollution. So here one is this one, marine pollution, marine pollution, महासागरीय प्रदूषण. जैसे इसमें क्या है, जो शिपिंग है, जो गार्बेज होते हैं, the garbage, right, all those things which can discharge there. Then you know sometime oil spillage,
accidental oil spill, leakage can be there. Then now what is happening there? Trash, plastic, microplastic in the ocean, like Great Pacific garbage, GPG there. Now here garbage, plastics, plastic trash in the open sea. And one of the very important thing will always come in news, Great Pacific garbage, right? Tons and tons, thousands and thousands tons of the plastic waste floating in the mid of the ocean with the gyre, ocean current. So plastic trash, right? Whatever we dump that or through a river, this go to the sea and ocean, right? So that is what nowadays this can impact. This can impact marine life, marine biodiversity. महासागर का जो जैव विविधता है, जैसे कि शार्क, राइट, कई बार फिशिंग वगैरह भी होते हैं जो है, वेलिंग, वेल, लाइक जापान को वेलिंग के लिए माना जाता है. इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन ट्राई टू रेगुलेट द वेलिंग, किलिंग ऑफ वेल, वेल जो होते हैं, and it has got a lot of economic use of the well and the parts of the well. So welling, killing of wells, right? Shark, many such marine species, they can be threatened by the pollution, that part of it. And sometimes there are hunting of well for economic use and all this happens there. So regulating open sea, high sea becomes very, very important from many dimensions. That's what this ये treaty है, United Nations का high sea treaty. India has signed. Now look at here, this article. ये article यहाँ पर है. Now see here, India's recent signing of the biodiversity beyond national jurisdiction, BBNJ. Biodiversity beyond national jurisdiction. कहाँ तक national jurisdiction होता है? 12 nautical miles. उसके बाद जो है, जो biodiversity part आता है, whether you talk about any kind of a living species, marine species, sea and ocean found there, turtles, right, shark, dugong, right, then well, whatever. India has signed an agreement that is called BBNJ. Important environment ecology question can be asked in the exam, है ना, वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है इस पे. तो यहाँ पर क्या है, also better known as the high sea treaty, है ना, has drawn both praise and skepticism from marine. इंडिया ने जब ज्वाइन किया ये हाई सी ट्रीटी और दिस व्हाट इज कॉल्ड हियर बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, तो भारत की तारीफ भी की गई कि भारत बहुत अच्छा काम करना चाह रहा है, इसका एग्रीमेंट है. लेकिन कुछ जगह पे क्या है, फेयर भी है कि क्या हम रियली मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे इस तरह के, क्या हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट को क्या रियली उतना कंट्रोल कर पाएंगे कि जिससे बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो जाए. तो ये चीज़ है. हेल्ड एज अ लैंडमार्क स्टेप इन ओशियन गवर्नेंस, द ट्रीटी सीक्स टू प्रोटेक्ट मरीन इकोसिस्टम. What is the treaty seek to protect? Marine ecosystem. महासागरी जो क्षेत्र है और उसके जो इकोसिस्टम है उनको संरक्षण देना. मरीन इकोसिस्टम है सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज. जो 12 नॉटिकल मील के बाहर का क्षेत्र है जहां हम इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन करते हैं, उसका यूज करते हैं और वहां से हम जो चीजें निकाल रहे हैं और उसका क्या इंपैक्ट होगा बायोडाइवर्सिटी के पार्ट में, तो ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है उसमें, कॉम्प्लेक्सिटी जो है. और यहाँ पर अनक्लॉज जो बताए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज, क्या लिखा है, एज द थर्ड इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट अंडर द यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, राइट, बीबीएनजे ट्रीटी फॉलोज अर्लियर रिकॉर्ड ऑफ डीप सी माइनिंग. सी हियर यहाँ आर्टिकल दिया हुआ है, डीप सी माइनिंग एंड फिशरीज, फिशिंग एंड डीप सी माइनिंग. उससे पहले भी यहाँ पर है प्रोविजन कंजर्विंग मरीन बायोडाइवर्सिटी, इक्विटेबल यूज ऑफ शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, इन्वायरमेंट. सी मैंने यही बताया कि जो भी आप न्यूज में पढ़ते हो उसको आपको क्लासरूम जीएस के साथ कनेक्ट करना है. You have to connect with general studies. That's very, very important. Because Nagoya Protocol, right, which is a biodiversity protocol, CBD, Convention of Biodiversity, वहाँ भी इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट की बात होती है. ये सब कनेक्ट हो जाता है, मतलब ओपन सी का लेके बहुत सारी चीजें आ जाता है. मैंने एक सेशन किया है, मैंने एक लाइव सेशन किया है जहाँ मैंने सी के बारे में, इंडियन ओशियन के बारे में मैंने एक अलग से 2 घंटे का सेशन किया है. वो आपको चैनल में मिल जाएगा, लाइव सेशन, where I've conducted about Indian Ocean and the importance of Indian Ocean, historical, cultural, economic, environmental, science and technology perspective of Indian Ocean. और भारत जो है हिंद महासागर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र है वहाँ पर है. तो आप वो वीडियो जरूर देखना, प्लीज सी दैट वीडियो दैट इज देयर इन द चैनल. नाउ कंजर्विंग हियर, ये चीज़ है हार्मफुल एक्टिविटी जो है, जो फ्रॉड विद चैलेंजेस यहाँ पर है. इज अ वेरी गुड एडिटोरियल,
जो हम लोगों ने डीएनए में कंपाइल करके दिया है, राइट। डेली न्यूज फीड जो हम लोग देवर IAS अकेडमी दे रहे हैं, वो चीज़ वहाँ पर आपको अवेलेबल किया जा रहा है। तो दैट इज़ वेयर हियर। तो जो मैंने अभी बताया यहाँ पर, ये सारी चीज़ें वहाँ पर है। ऑयल स्पिल के बारे में जो मैंने बताया, अब इसमें जो ट्रीटी में अब तक में ओनली 14 विथ ओनली 14 ऑफ इट्स 104 सिग्नेटरीज हैव रेटिफाइड। कहने का मतलब अभी तक इस ट्रीटी में, राइट, 104 कंट्रीज हैव साइंड, है ना, सिग्नेटरीज जो उस पर साइन किया है राष्ट्रों ने, और उसमें से केवल 4 कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट किया, रेटिफाई किया है, रेटिफिकेशन। यानी कि केवल 4 राष्ट्र हैं जो इसको एग्री किया है, बाकी राष्ट्र खाली साइन किया है, रेटिफिकेशन नहीं किया है। तो अभी ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने में और भी कंट्रीज को रेटिफाई करना होगा। व्हाट आई वांट टू से, in order to make this treaty applicable, implementation come into effect, right, other countries also need to ratify it. तो इंडिया का ज्वाइन करना एक महत्वपूर्ण स्टेप है। यहाँ पर यू कैन सी हियर दिस गिवन हियर, ये पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। और ये ट्रीटी कब इंप्लीमेंट होगा, अगर 60 कंट्रीज हैव रेटिफाइड, व्हेन इट कम इनटू इफेक्ट, कि जब इसमें 60 कंट्रीज, when 60 countries ratify this treaty, then it will come into effect, तब जाके इसका इंप्लीमेंटेशन होगा। तो अभी केवल 4 कंट्रीज की बात हुई है, यानी कि अभी और भी कई कंट्रीज को रेटिफाई करना है। हाँ, बट यस, एक शुरुआत हुई है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग of a marine and ocean conservation, marine ecosystem and biodiversity conservation के लिए ये एक शुरुआत है, this is the beginning, you can say that। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एंड यू कैन गेट क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स एग्जाम, इसमें क्वेश्चन आ सकता है ना। फोकस और हाई सीज के बारे में तो सारा यहाँ दिया हुआ है, किसके बारे में आप पढ़ेंगे। अब देखो क्या लिखा है कि मच ऑफ द हेजिटेशन है। अब ये चाइना है, चाइना, यू नो, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, जियो पोलिटिकल एस्पेक्ट, कई बार जियो पॉलिटिक्स आ जाता है, तो चाइना इज नॉट वेरी विलिंग टू रेटिफाई, ठीक है। इंडिया का जो इंडियन ओशन है वहां पर आता है, हेजिटेशन स्टेम फ्रॉम जो कंट्रीज है साउथ चाइना, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज वगैरह जो है वहां पर पार्ट आता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। अब देखो ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, जितने क्रिटिक्स वगैरह जो है हाई सी का यहाँ पे किया जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, जब आप ऐसे आर्टिकल पढ़ रहे हो, व्हेन यू आर रीडिंग दिस आर्टिकल, गो टू द मेन साइट। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट थिंग, जो मैं हमेशा ये कहता हूं, क्या मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप ऐसी चीजों को पढ़ते हो, आप थोड़ा एक्स्ट्रा इस पे जाओ। व्हाट इज एक्स्ट्रा थिंग, कि गो टू द समथिंग मोर, ठीक है, गो टू समथिंग एल्स। क्या है समथिंग एल्स हियर, डिग आउट समथिंग मोर। ये ट्रीटी क्या है, से प्रीलिम्स एग्जाम, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, यू गेट क्वेश्चन फ्रॉम ट्रीटी। ट्रीटी और कन्वेंशन पे क्वेश्चंस आते हैं। प्रोटोकॉल, एग्रीमेंट, व्हाट इज प्रोटोकॉल, बाइंडिंग एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट, अकॉर्ड, ये सब ऐसा चीज है जहां पर लगातार करंट एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ, लिंक विद करंट अफेयर्स, क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सो नाउ लुक एट हियर दिस वन। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, ये सारी चीजें, दिस पार्ट, ये है ना सारा चीज। आप देखो हर जगह पे यहाँ पर ये आया हुआ है, हर इंस्टीट्यूट में कवर किया गया है, राइट। Even you can see here, BBC has covered many websites. You will get there. Now see, United Nations, Indian Express, ये सारा चीज है। आज हिंदू पेपर में आर्टिकल आया हुआ है, राइट, दिस हिंदू पेपर हैज कवर्ड दिस आर्टिकल, ये चीज है। अंडर द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंजर्वेशन यूज ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड जो है BBJN, ये चीज है। तो मरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए दिस BBNJ एग्रीमेंट और व्हाट इज ए हाई सीज ट्रीटी। तो आप नाउ इफ यू सी हियर, इफ आई राइट हियर BBNJ, है ना, BBNJ एग्रीमेंट किसके अंदर है, अनक्लॉज के अंदर है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज वहां पे है। तो इसका जो कंट्रीज है ना, हाउ मेनी कंट्रीज हैव ज्वाइंड, सिग्नेटरीज और मेंबर पार्टीज जो होता है, यू विल गेट दैट। अब 104 कंट्रीज हो चुका है ना, द नंबर हैव इंक्रीज नाउ 8, यहाँ पे ऐसे आ रहा है 8 कंट्रीज हैव सम ऑफ द सिग्नेटरीज यहाँ पर है, राइट।
इंडिया हैज ऑल्सो साइंड हियर, ठीक है। नाउ इसका जो रेटिफिकेशन जो है, नाउ सी हियर, ये पार्ट यहां पर है, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसको भी, उसमें भी जो चीजें हाईलाइट होता है, जो भी चीजें करंट से, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ इट बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी हियर क्या लिखा हुआ है, बीबीएनजे एग्रीमेंट विल बी द थर्ड इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट अंडर अनक्लॉज इफ एंड एंटर इन द फोर्स जो है, ठीक है। इसमें 1994 में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्स इन द इंटरनेशनल सी बेड एरिया। 1995 में यूएन फिश स्टॉक एग्रीमेंट है। अब ये तीसरा यहां पर आता है एग्रीमेंट, और यहां पे क्या लिखा हुआ है कि अडॉप्टेड 10th अनक्लॉज 1982 में किया गया, 1984 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। अब यहां पर जो है क्या लिखा हुआ है, इट विल बी इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी ऑप्टेड एंटर इनटू फोर्स 120 डेज आफ्टर 60th रेटिफिकेशन एक्सेप्ट अप्रूवल जो है। 91 कंट्रीज हैव साइंड, बट अब 104 कंट्रीज हो चुका है, रेटिफिकेशन भी इंक्रीज हुआ है। तो अब आप देखो क्या है, अप्रूव्स इंडिया साइनिंग ऑफ दिस वन, ज्वाइनिंग देयर, रेटिफिकेशन नहीं हुआ है, रेटिफिकेशन इज अनदर थिंग हियर, ठीक है। तो यू सी दैट इज साइनिंग पार्ट इज गिवन हियर, यहां जो है साइनिंग के पार्ट दिया हुआ है कि इंडिया हैज साइंड दिस वन, है ना। कंट्रीज रेटिफिकेशन अभी वो नहीं हुआ है, तो अब यहां कंट्रीज रेटिफाइड, अगर आप देखो कौन कौन से कंट्री रेटिफिकेशन किया है, दैट इंफॉर्मेशन गेट समटाइम, यू नो फैक्ट्स, आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए। यहां पर ये चीज है, इंडिया का नाम नहीं है इसमें, मतलब इंडिया हैज साइंड बट इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड। भारत साइन किया है, ज्वाइन किया, अभी तक रेटिफाई नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। These countries have accepted, ratified. Palau, Chile, Belize, Seychelles, Monaco, Mauritius, then Micronesia. These are island nations, these are island countries. They have ratified it. Big countries like US, India, China, Australia, Japan, all these countries, they have not ratified. और ये एग्रीमेंट कब रेटिफाइड होगा, कि जब तक कम इनटू इंप्लीमेंट, जब तक 60 कंट्रीज हैव नॉट एक्सेप्टेड और रेटिफाइड इट, इट विल नॉट कम इनटू इफेक्ट। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, अगर आप इसकी बात करें तो यहां पर अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, इसको अडॉप्ट किया गया, दिस वाज अडॉप्टेड इन 1982 एंड रेटिफाइड इन 90 एंड इंप्लीमेंटेड, मतलब रेटिफिकेशन होने के बाद ये जी 1994, ठीक है। अब इसके अंदर 3 एग्रीमेंट्स है, 3 एग्रीमेंट्स। सो यू कैन से दिस इज द मदर एंड दिस आर द चिल्ड्रन। 3 एग्रीमेंट्स जो इसके अंदर आता है, पहला है मिनरल रिसोर्सेज, एग्रीमेंट ऑन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम हाई सीज, right, like you know, mining of resources, mineral resources, where sea and ocean. Second यहां पर क्या है, फिशिंग, एक्सप्लोरेशन ऑफ फिश स्टॉक, सी एंड ओशन से जो सी फूड आता है, फिशिंग, उसको रेगुलेट करना। एंड थर्ड इज व्हाट, अभी जो मैंने बात किया, बायोडाइवर्सिटी, एग्रीमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ मरीन इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। ये 3 अलग अलग एग्रीमेंट्स हैं जो कि अनक्लॉज के अंदर है। अब इसी को बीबीएनजे कहा गया है, BBNJ, biodiversity beyond national jurisdiction, or what we say here, this is a high sea treaty. So India has signed all 3. India is a member country of UNCLOS. India has joined UNCLOS. India has signed that, but अभी ratification नहीं हुआ है, right? It will not be ratified. तो ये चीज यहां पर कवर हो रहा है। When you go to this part, very important article, right? There is a very important article. So जब आप ऐसी चीजें पढ़ते हो, जब आप ऐसे आर्टिकल पढ़ते हो,
यू गेट अ काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव। बट एक चीज याद रखना है, करंट अफेयर्स तभी हेल्प होगा जब आपका सिलेबस कवर किया हुआ है। एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट इकोलॉजी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बात मैं हर बार बताता हूँ, जब भी मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ साइंस, टेक और इन्वायरमेंट, मैं ये बात को बार बार दोहराता हूँ कि फर्स्ट लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन कम्स द करंट अफेयर्स, है ना, बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट यू ट्राई टू लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड देन कम्स टू दिस। सो इन देवघर IAS अकेडमी राइट नाउ आई एम टीचिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका मॉड्यूल चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो अभी वहाँ पर। एट द सेम टाइम अभी साइंस टेक खत्म होने के बाद आई विल स्टार्ट माई इन्वायरमेंट मॉड्यूल। आई एम गोइंग टू वेरी सून स्टार्ट विथ माई इन्वायरमेंट सब्जेक्ट मॉड्यूल, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट, वेर यू गेट ऑल दिस परस्पेक्टिव। DLF में तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल। फिर यहाँ पर वही है जो प्रियम्बल का, द लॉट ऑफ आर्टिकल्स कमिंग प्रियम्बल, सोशलिज्म, सोशलिस्ट एंड सेकुलरिज्म, तो ये आप इसको पढ़ सकते हो वहाँ पर उसके बारे में। फिर अगेन रिपब्लिक, अगेन ऑन द पार्ट ऑफ द प्रियम्बल, दिस डिबेट इज गोइंग ऑन अबाउट सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड्स इन आवर प्रियम्बल एंड द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आप इसको एडिटोरियल पढ़ सकते हो, दिस यू कैन रीड इन दिस केस। ठीक है, तो बहुत सारे केस स्टडीज आपको पढ़ने को मिलेगा जो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। नाउ लुक एट हियर दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, very very important, again science and technology, thumba, right? Now what you see right now, this is a sounding rocket, this is our space program. मैं पूरे आर्टिकल के बारे में बताता हूँ, let me discuss this article here. India's space program, अगर भारत का जो स्पेस प्रोग्राम की बात करें, our Indian space program, the genesis, right, ISRO, ISRO and all this, the genesis, beginning, है ना, शुरुआत, that goes to Thumba. Thumba is a very small, is a coastal village in Thiruvananthapuram, capital city of Kerala. A small coastal village, Thumba. There, way back in 1963, November 21st, 1963, Dr. Vikram Sarabhai and the team of scientists, even the team of scientists, Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. Kalam was also young scientist working there. Here, we successfully conducted test of what becomes a very important rocket called sounding rocket. भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में पहला कदम, द फर्स्ट बेबी स्टेप ऑफ इंडिया इनटू द स्पेस सेक्टर। उस समय बैलगाड़ी, बुलॉक कार्ट, साइकिल, एवरी पार्ट वाज ब्रॉट असेंबल्ड टू बिल्ड दिस साउंडिंग रॉकेट। एंड दिस साउंडिंग रॉकेट, इसका नाम था नाइकी अपेची। And it was a collaboration with US and France. ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है कि शुरुआत के दौर पे जब हमारा स्पेस प्रोग्राम डेवलप हो रहा था तो रशिया, फ्रांस were two of the strategic partners. But this rocket, Nike Apache, with the help of US, we were able to build that sounding rocket. This is a rocket. Sounding rocket is an experimental rocket to test upper atmospheric part. कोई भी हम जब अपना बनाते हैं रॉकेट, जैसे PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल,
And whenever we go for any satellite spacecraft launch, we first need to probe upper atmosphere. बाहरी अंतरिक्ष जो वायुमंडल है उसका हमें अध्ययन करना पड़ता है, स्टडी करना होता है उनकी पैरामीटर्स के लिए. कई बार जो हम सैटेलाइट बनाते हैं, न्यू सैटेलाइट, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स, पार्ट्स, सब कंपोनेंट्स, whether it is able to work properly in the space, क्या वो ढंग से स्पेस में काम कर पाता है, उसकी टेस्टिंग जो होती है, उसके लिए हम ये ऐसे रॉकेट को यूज करते हैं. राइट? तो यू कैन से इट इज द बिगिनिंग ऑफ अवर लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अवर लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम. रॉकेट टेक्नोलॉजी है ना, हमारे जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसकी शुरुआत यहां से होती है. दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. लेटर ऑन इंडिया बिल्ड SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. SLV-3 वाज अ सक्सेसफुल लॉन्च, 80s में हुआ था. फिर देन वी बिल्ड ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. देन लेटर 1992 PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. 2001 with the new millennium GSLV, geostationary satellite launch vehicle, and very recent 2 years back SSLV, small satellite launch vehicle, and now we are going for new generation launch vehicle. So rocket technology in India, right? And Thumba, if you look at Thumba here, Thumba में यहाँ पे center है, we call it TIERLS, stands for Thumba इक्वेटोरियल. यहां पर मैग्नेटिक लाइन क्रॉस करता है. अर्थ हैज अ जियोमैग्नेटिज्म, अर्थ हैज अ मैग्नेटिज्म, जियोमैग्नेटिज्म. तो जो जियोमैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ जो है उसका इक्वेटोरियल लाइन, ये जो इक्वेटोरियल वर्ड है 0 डिग्री लैटिट्यूड नहीं है. रिमेंबर दैट, इट इज नॉट 0 डिग्री लैटिट्यूड, नॉट ज्योग्राफिकल विच इज कॉल्ड इक्वेटर. दिस इक्वेटर इज द मैग्नेटिक लाइन. अर्थ इज अगेन नोन एज अ मैग्नेट. अर्थ हैज अ जियोमैग्नेटिज्म, है ना. या पढ़ोगे ज्योग्राफी में कोर, निफे, निकल एंड आयरन, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. तो उसके जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, पोल और इक्वेटर, वो क्रॉस करता है थुम्बा पे, मैग्नेटिक लाइंस. रिमेंबर दैट. इक्वेटोरियल रॉकेट, लॉन्चिंग स्टेशन, TERLS. इसी जगह पे थुम्बा में एक और सेंटर है VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर. वी हैव अनदर सेंटर हियर कॉल्ड VSSC, नेम्ड आफ्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया. डॉक्टर विक्रम साराभाई है ना, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इसरो सेंटर. ये केंद्र वहां पर है. तो अगर हम अपने इतिहास को देखें, अंतरिक्ष विज्ञान के जो सफर को देखें, तो थुम्बा बहुत महत्वपूर्ण जगह है. और 1963 से लेकर 2023 की बात करें तो 60 साल पूरे हो गए. और अगर इस महीने की बात करें, दिस मंथ, 61 साल पूरे हो गए, 61 ईयर्स. नाउ वी आर इन, व्हाट इज द डेट? 27 नवंबर 2024. मोर देन 61 ईयर्स, 61 ईयर्स ऑफ दिस लैंडमार्क इवेंट जो हो चुका है. ठीक है. इसके लिए मैंने फिर क्या बताया, सिलेबस को पढ़ना बहुत जरूरी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है. जब तक आप साइंस टेक सिलेबस नहीं पढ़ोगे, ये सब कुछ नहीं चीज़ों को लिंक कर पाओगे. एंड हिस्ट्री हर चीज़ में आता है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी अपने इतिहास है, हिस्ट्री वहाँ पर है. तो नाउ दिस इज व्हाट कम्स हियर, ये चीज़ है ना, विच कम्स हियर. आप देखो उसको कैसे हम लोग वहाँ पे असेंबल करते हैं. नाउ यू सी 2 स्टेज रॉकेट हियर. What you see right now, you can see the young scientist fixing everything. So there is a church, Mary Magdalene Church. कभी भी आप त्रिवेंद्रम जाओ, तिरुवनंतपुरम, आप वहाँ जाना, वहाँ एक म्यूजियम है. We have a space museum, NASA Space Museum, where Thumba, right, where you can go and see the museum, that part of it. मैं केरला जाता रहता हूँ तो वहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं, आई बीन टेलिंग स्टूडेंट देयर, ये चीज़ें. A Nike Apache 2-stage rocket on its launcher at Thumba, Kerala. This is the old photograph what you can see here.
अभी रिसेंटली देयर इज अ वेब सीरीज कॉल्ड रॉकेट बॉयज. मैं जब भी ये टॉपिक पढ़ाता हूँ क्लास में, मैं रॉकेट बॉयज के बारे में जरूर बोलता हूँ. सोनी लीव हैज गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट वेब सीरीज कॉल्ड रॉकेट बॉयज, राइट. तो देयर अगेन द सेम हिस्ट्री हैज बीन ब्यूटिफुली डिस्कस्ड. उसमें ये पार्ट भी दिखाया गया फर्स्ट सीजन, where Dr. Vikram Sarabhai and Homi Jahangir Bhabha, Dr. APJ Abdul Kalam, all these scientists who were launching this sounding rocket. So this article give you a very good insight. अभी recently अभी क्या हुआ है, 4,700 किलोग्राम का, which is very recent, 4,700 किलोग्राम GSAT N2 was launched by SpaceX rocket Falcon 9. अभी just news में Falcon 9, this is the rocket of SpaceX, Elon Musk, which has launched Indian satellite communication satellite. GSAT क्या है? Geostationary satellite, that is a communication satellite. That GSAT N2 that was launched by there. GSAT 20 satellite है ना, from Falcon 9 rocket. उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है, K band high throughput वहाँ पर चीज़ है. ये सब चीज़ हम लोग अभी क्लास में पढ़ रहे हैं. Satellite was placed in this. ये सारी चीज़ें हैं. अभी nowadays morning I am taking the batch here. वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रहे हैं. So all the SpaceX यहाँ पे है. Recently India has launched this SpaceX rocket, Falcon 9, GSAT N2 और GSAT 20 communication satellite, 4,700 kilogram satellite from there. Current affairs इसीलिए बहुत important होता है. This becomes very important from that perspective. कि जब आप न्यूज़ पढ़ते हो ये चीज़ है तो आपको पता चलता है बहुत सारी चीज़ें. हम स्पेस की फील्ड में काफ़ी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. रीड दिस आर्टिकल. आप लोगों का काम बहुत मैं आसान कर रहा हूँ. I've been doing this daily news feed में जो भी आ रहे हैं, and whatever discussion is happening now, this is going to help you out, learn the things very clear part of it, and this is what is required, है ना. ये सारी चीज़ चाहिए. जो YouTube चैनल में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर ये सब चीज़ें कवर हो जो एग्जाम पर्सपेक्टिव हो, that will help you qualify the exam, right. तो ये चीज़ यहाँ पर है. This is what I have discussed here. फिर यहाँ पर commissions for SC, ST and OBC minorities discuss their common issues. Social issues, society, scheduled caste, scheduled tribe, minorities, other backward class, all this together. क्या क्या उनकी कॉमन इश्यूज की मीटिंग हुआ है, तो वहाँ पर ये चीज़ है. किशोर मकवाना, एंड यू नो दैट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, देन शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज, क्या क्या कॉमन उसके वो मीटिंग हुआ है. तो सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ आर्टिकल दैट यू कैन रीड देयर. आई विल नॉट गो इनटू दैट. Now very important this one, melting of glaciers, Himalayan glaciers, mountain glaciers, climate change impact, है ना. उस संदर्भ में यहाँ पर है. NGT issues notice to center on expansion of glacier lakes, glacier lake के बारे में. NGT you know, NGT, what is NGT? क्या है NGT बताओ. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्वाजी जुडिशियल बॉडी. एनजीटी एक्ट 2010 we set up a NGT, National Green Tribunal, NGT. Now this NGT is a quasi judicial body, fast adjudication of environmental cases. Is not a completely judicial body. Tribunals are quasi judicial body, and it's a principal bench होता जो is a statutory body formed under Act of Parliament, NGT Act 2010. कोई भी बॉडी जो एक्ट या लॉ के अंदर बनता है उसको स्टैट्यूटरी लॉ बॉडी बोलते हैं, लीगल ऑथोरिटी कहा जाता है, राइट. फॉर्म्ड अंडर एनजीटी एक्ट. दो 2010 में पार्लियामेंट के द्वारा ये कानून बनाया गया जिसमें इसको बनाया गया, इसको, राइट. दिस हैज बीन फॉर्म्ड एनजीटी एक्ट, राइट. अब इसके जो प्रिंसिपल बेंच है, मेन बेंच जो होता है जहां पर, और इसमें जजेस भी होते हैं, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड
judge of Supreme Court becomes the chairman of the NGT. So there are half members out of 10 members, half are from judiciary, other halves are experts, subject matter expert, field of environment. So principal bench, that is in New Delhi. सुप्रीम कोर्ट के ही पास में ये यहाँ पे बेंच है, और इसके जो रीजनल बेंचेस हैं, राइट, इट हैज गॉट 4 रीजनल बेंचेस कवरिंग ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. वन इज भोपाल, सेंट्रल पार्ट, पहले ये भोपाल से ही ऑपरेट होता था, मध्य प्रदेश. देन पुणे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात. देन चेन्नई, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, southern bench, Chennai. And fourth one, that is Kolkata, eastern part of the country, Bihar, West Bengal, Jharkhand, and northeastern India, Assam, Tripura, Mizoram, Manipur, Arunachal Pradesh, right, Mizoram, and all these 7 states, there is a Kolkata bench. And then they have other kind of sitting kind of circuits are there, जहाँ पे वो डिसीजन होते हैं. कर्नाटका में अलग होगा, आंध्रा में अलग होगा, नॉर्थ ईस्ट के अलग होंगे, अदर स्टेट के अलग होंगे. तो दैट इज बीन मेड हियर टू एजुकेट द मैटर. दे आर एक्सपर्ट इन द इन्वॉल्व फील्ड. समटाइम दे कैन सेंड सुओ मोटो नोटिस. सरकार को कई बार सुओ मोटो, खुद से मान लो कि कोई आर्टिकल आया हुआ है, फिर से अखबार में कुछ ऐसा पोल्यूशन रिलेटेड चीज है या कहीं पर भी कोई ऐसी चीज है, तो members can and the chairman can send a notice to government authorities, suo moto notice to government or any such kind of government bodies or any even private bodies or even semi government bodies, right, it can be sent there. Now what is the article here? This one, NGT issues notice to central government on expansion of glacier lake. You know, अब आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव, कि ग्लेशियर लेक जो है, लेक विच इज फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर, कहाँ? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमालयन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. नाउ व्हाट इज हैपनिंग देयर? एक बहुत बड़ा खतरा जो क्लाइमेट चेंज का हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट. जैसे आपको पता है सिक्किम, लोनाक लेक, राइट, लोनाक लेक आउटबर्स्ट was there where people died because of the lake outburst, glacier lake outburst. कहां की बात है? सिक्किम की, 2 साल पहले, where the lake outburst, melting of the glacier lake. I have covered in my geography book from Pearson publication, Geography of India book, ये सब मैंने कॉन्टेक्स्ट कवर किया है. माई एनवायरमेंट बुक ऑल्सो इट हैज बीन कवर्ड ऑल दिस काइंड ऑफ एरिया. उत्तराखंड, चमोली, देयर वाज अ डैम कॉल्ड तपोवन डैम. दैट वाज बिकॉज ऑफ देयर वाज अ लेक आउटबर्स्ट, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, GLFO. तपोवन डैम वाज बर्स्ट अवे. Climate change impact on such kind of glacier lakes. Sikkim has got many such lakes. Right? So now expansion of this glacier lake and all this part, now the NGT is sending the notice to the government, central government. And central government कौन सी बॉडी आती है? Ministry of Environment, Forest and Climate Change. उनको इश्यू किया जा रहा है. It has been there. So what is here? NGT has issued notice to the center, MOFCC, Ministry of Environment, Forest, Climate Change, Central Government Ministry, and others regarding the rapid expansion Himalayan glacier lakes. Rapid expansion जो हो रहा है, raising concern over the increasing risk of natural disaster which can happen. वो risk ले गए. NGT took suo moto. What is suo moto? That NGT itself can take notice of this fact and send a notice to the government asking for reply. Suo moto. ठीक है? Suo moto cognizance of the news report. ये न्यूज रिपोर्ट आया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए showing about 10.81% increase of the glacier lakes in the last 13 years due to the rising temperature. जब ग्लेशियर मेल्ट करेगा तो पानी पिघलेगा, बर्फ का पिघलना होगा तो पानी होगा, झीलें बनेंगी,
यानी कि ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है फास्ट, तभी पानी बन रहा है ना। लेक कब बनेगा, पानी चाहिए। अब पानी कहां से आ रहा है, जब ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है, व्हेन द ग्लेशियर मेल्टिंग देयर, दैट पार्ट इज कमिंग, राइट। तो दैट इज व्हाट कमिंग इन लास्ट 13 years because of global warming, rising temperature. As per the report, the melting of glacier paved the way for largest glacier lakes which held more water. ठीक है, larger the more water and in turn increase the risk of natural disaster such a flood. when the पानी जब मेल्ट करेगा तो वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो पानी का ओवरफ्लो होगा, दैट इज कॉल्ड GL ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट और आउटफ्लो, दैट व्हाट कम्स हियर। एंड देन फ्लड के साथ साथ क्या होगा, लैंडस्लाइड, भूस्खलन। दैट व्हाट डायरेक्टली द रिस्पोंडेंट टू फाइल देयर रिप्लाईज इन अ वीक टाइम बिफोर द बेंच, नेक्स्ट हियरिंग ऑन March 10, कि March 10 तक से पहले वहां पर उससे एक वीक पहले तक में सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका जवाब देना होगा क्या किया जा रहा है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जो कि डिजास्टर हो वहां। एंड यू नो इवन द मेंस एग्जाम, यूपीएससी मेन एग्जाम, GS3 पेपर, क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम अबाउट दिस काइंड ऑफ अ डैम बस्ट, लाइक तपोवन डैम बस्ट वाज देयर बिकॉज ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबस्ट। पर्सपेक्टिव, ये पर्सपेक्टिव बिल्ड करना होगा। एनजीटी तो आपको पता होना चाहिए, बट यू शुड ऑल्सो रीड वेयर द एनजीटी इज टेकिंग एक्शन एंड टेकिंग सम काइंड ऑफ रोल और कंट्रीब्यूशन ऑफ एनजीटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विच आई हैव मेंशन इन टर्म्स ऑफ ग्लेशियर लेक के पार्ट में जो मैंने बताया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। दिस नेशन फर्स्ट स्पिरिट विल कीप कॉन्स्टिट्यूशन अलाइव। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन डे, कल कॉन्स्टिट्यूशन डे था, सो इवन प्राइम मिनिस्टर ही स्पोक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इंडियन पॉलिटी, नेशन फर्स्ट। सी इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, बट वी ऑल एज अ वन सिटीजन, इंडियन सिटीजन वी कॉल, तो वो चीज वहां पर है। इवन यू नो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट हैज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, उसका नीचे आपको यहां पर है, बट आई विल कम टू दैट वन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ लुक एट हियर अनदर थिंग, deep depression over Bay of Bengal likely to intensify into a cyclonic event. Every year cyclonic event, summer and this November time, October-November time. Now October-November time, Coromandel coast, Tamil Nadu get affected every year because of cyclonic weather. है ना, हर साल साइक्लोनिक इवेंट से और साइक्लोन के केस में तमिलनाडु कोस्ट, खासतौर पर चेन्नई पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अभी नवंबर का महीना चल रहा है, अब वहां पर तूफान कहां पर, तमिलनाडु में स्टार्ट हो चुका है। पिछले साल भी हुआ, तो उससे पहले भी हुआ, अब इस साल की बात है, करंट न्यूज। एंड यू कैन कनेक्ट विद ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, 3 टॉपिक्स विल कवर्ड हियर। सी रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैज गिवन द वार्निंग 5:30 PM on Tuesday, the system, the depression part. Now you can see that tufan, cyclonic event, heavy rain, gusty winds, Pamban. Where is Pamban? Pamban bridge. अंग्रेजों ने उसको एडम ब्रिज नाम दिया था। पार्क स्ट्रेट, रामानंतपुरम, रामेश्वरम, तमिलनाडु. So there this part of is given there. So what is speed of 8 km/h? Right, 240 km southeast of Trincomalee. Right, to 520 km from southeast of Nagapattinam. Alert issue किया गया. So you know that this one, when you look at cyclonic event, again, see, remember that. Again, getting back to the subject, that is a headline, Hindu paper headline. But again, you have to go back to the subject. Cyclone का जो है, 2 condition है, दो condition आता है. One is this April May, Bay of Bengal का जो है. Even you know Arabian Sea also get there. And second is this one, October November. This situation there. And you know that this both case, one is the Bay of Bengal case, Odisha, Bengal, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and here frequency is more than the part of Arabian Sea. ऐसा नहीं है कि Arabian Sea में नहीं आता है. Arabian Sea also face that one, but the frequency of the occurrence is higher in Bay of Bengal side. So the geographical part, and you know such cyclone. Now what is another thing here? From disaster management point of view, disaster management of cyclone, what is very important here? Alert, early warning system, EWS, alert system here, warning, early warning system. And you know we have
IMD, Indian Meteorological Department, and Regional Meteorological Department give warning, timely warning, forecast, so that the lives of the people can be saved, right? The people can be moved out of the coastal areas, cyclone centers वगैरह जो है, that part. Now what is another angle here? Why this time October, November becomes this part of? Because you know this is a time where retreating monsoon is there, southwest monsoon, right? And this time the depression, there's a depression, you know, low pressure belt that form over the Bay of Bengal, right? Change of the season, the temperature part of this depression here. यहाँ भी depression बनता है this year. Now here this ongoing southwest monsoon जो condition होता है बंगाल, you know, Bengal and other that part that also gets there. तो यहाँ पर भी चीज, तो their occurrence that depends upon the seasonal changes. Ongoing monsoon जो southwest monsoon जो है, and again this also result into warm ocean here, warm ocean condition, moisture and all this one, right? And what is now happening here? अब हो क्या रहा है यहाँ पर? Climate change, because of global warming and the climate change impact, right? This type of cyclonic events are what is called extreme weather events are getting intensified. It's becoming more and more severe. And that's why all this cyclonic event, right, are causing more damage. ज़्यादा damage हो रहा है. तो climate change is now causing more and more such kind of problem there, impact there. Connecting the dots, it connect the dots. इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा बार बार यही कहना होता है, पहले सब्जेक्ट को कमांड करो, तब करंट अफेयर्स पढ़ने में मजा आएगा. You will love to read current affairs. Current affairs पर हेडलाइन पता होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए. You will enjoy reading the current affairs. आपको काफी मजा आएगा पढ़ने में. अगर आपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसको कनेक्ट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है और फिर आपको मजे से आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे. You will be able to connect with every aspect and you will enjoy such kind of thing which comes in the news. That what comes here, the headline there. You should be updated of the headline there. And many of the things which will link with the GS, general studies part, that will be there. Anyway, now let's come to this one. Supreme Court asked Center to file report on Penayar water sharing, Indian polity and governance. Penayar water sharing. You know, Indian Constitution provide that sharing of water between the states. And you all know that states have been, there have been some critical issues and dispute between the states. है ना, राज्यों के बीच में जो झगड़ा जो है पानी को लेकर ये काफी रहा है. तो अब यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे, अब यहाँ जो कमिटी है, प्लीज रिपोर्ट ऑन द कमिटी नेगोशिएट डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका. तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में पानी का शेयरिंग जो है, कावेरी, यू नो, कावेरी डिस्प्यूट, कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन पॉलिटी से कनेक्ट करना है, आर्टिकल्स एंड पार्ट ऑफ इट हियर. नाउ सी हियर, ये यहाँ पर जो कमिटी बनाई गई, जो ट्राइब्यूनल बनाया गया है कावेरी वाटर डिस्प्यूट का जो वहां पर है, तो पेनियार यहाँ पर. तो अब क्या आपको याद रखना है, ज्योग्राफी, कावेरी रिवर, ट्रिब्यूटरीज. कई बार क्या होता है, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन, यू गेट मैप बेस्ड क्वेश्चन. You should know the part of it. You see here, Supreme Court bench has given 2 weeks to the center to produce the negotiation committee's report on Penayar River. तो पेनायर रिवर की ज्योग्राफी पता होना चाहिए, ठीक है. ये दिस इज हियर गिवन हियर. सी हियर, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956. देयर इज अ पार्लियामेंट्री एक्ट. सी, वन इज द प्रोविजन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which allow for interstate water sharing, right? And second thing comes here, that is in terms of parliamentary act, how to deal with this kind of situation. So that is here no, given here, section 4 of the interstate river water dispute, the river water sharing dispute is there, how to resolve the dispute. Act of 1956, 1956 का ये कानून है कि ये ऐसे जो समस्याएं हैं,
उसको कैसे सुलझाया जाए। तो मेक अ सीरियस एंडेवर फॉर अ रिजोल्यूशन बिटवीन टू स्टेट्स, जहां पर कमिटी बनाया जाएगा और दोनों राज्यों की सरकार से बातचीत करके इस मसले को सुलझाने का काम करना। द प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व, द डिस्प्यूट हैज टू बी रिजॉल्व बिटवीन द स्टेट्स। So here 2018 Tamil Nadu had moved the court against Karnataka's work on check dams, Karnataka Kaveri river and this Peniyar river. You can see a check dam for agriculture, for irrigation. For irrigation, सिंचाई के लिए पानी चाहिए, उसके लिए चेक डैम बनाया जाता है। हमेशा याद रखना है कि whenever you look at this problem, जब वाटर का होता है ना इंटरस्टेट वाटर, when you talk about interstate water, वाटर शेयरिंग जो है, जल का जो वाटर शेयरिंग है, प्रॉब्लम कहां आता है कि दिस इज द रिवर विच मे गो बिटवीन वन स्टेट एंड टू स्टेट्स। नाउ दिस इज द बॉर्डर ऑफ द टू स्टेट्स, राइट, स्टेट 1 एंड स्टेट 2 और समटाइम मे बी स्टेट 3 ऑल्सो। अब ये क्या है, राइपेरियन, द कैचमेंट एरिया, कि रिवर विच इज फ्लोइंग हियर, ये जो नदी है, कोई भी नदी हो, कावेरी रिवर, महादेवी रिवर, राइट, मुल्ला परियार, परियार रिवर, जो भी स्टेट की हम बात करें, आई एम जस्ट जनरल टॉकिंग अबाउट, दिस रिवर जो होता है उसके अपने कैचमेंट एरिया होता है। नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दिस इज द अपस्ट्रीम, ये है डाउनस्ट्रीम। तो प्रॉब्लम कहां आता है कि दिस, जहां हेड स्ट्रीम है, वेयर इट स्टार्ट्स, सोर्स, वेयर द सोर्स इज देयर द स्टेट कैन कंट्रोल द वाटर, दिस वाटर, दिस वेयर द सोर्स इज देयर, वेयर द रिवर ओरिजिनेट, जहां नदी की शुरुआत होती है। अब यहां क्या होता है, ये जो वाटर है, वाटर गेट डाइवर्टेड फॉर इरिगेशन। एक बहुत बड़ा जरूरत क्या है, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर के लिए, एक्वाकल्चर के लिए, मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर एंड पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, कई बार डोमेस्टिक यूज, घरेलू उपयोग, पीने के लिए पानी, घर के लिए पानी, टाउन, अर्बन एरियाज। और अभी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन राइजिंग वेरी फास्ट, इंडियन पॉपुलेशन गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलस, जनसंख्या बढ़ता जा रहा है हर जगह पे, और हर जगह पानी चाहिए, पानी की समस्या हर जगह हो रही है। तो यहां पर जो चीज होता है, तो मोर वाटर इज यूज्ड हियर, पानी का उपयोग ज्यादा होता है यहां पर, और ये फ्रेश वाटर है, रिवर कैरीज फ्रेश वाटर, क्योंकि बहुत कम प्रेशर। अब यहां क्या है, देयर इज लेस वाटर, तो जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाता है। अब यहां भी किसान है, डाउनस्ट्रीम साइड में जो स्टेट है, दे ऑल्सो नीड वाटर, उनको भी एग्रीकल्चर करना है, उनको भी इरिगेशन चाहिए, उनको भी अपना डोमेस्टिक यूज चाहिए, वो पानी कम मिलता है। यहां झगड़ा है, लड़ाई यहां पर है, द फाइट इज हियर, लेस वाटर अवेलेबिलिटी, दैट इज व्हाट द फाइट बिटवीन द स्टेट हैपेंस। राज्यों के बीच में झगड़ा यहां पर आता है कि जो शेयर ऑफ वाटर होना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज पॉपुलेशन यहां भी ज्यादा है, उधर पॉपुलेशन है, अब इनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए, तो दैट द प्रॉब्लम डिस्प्यूट हैपेंस हियर, कि हियर लेस वाटर अवेलेबल फॉर यूज, तो दैट्स व्हाट कॉन्फ्लिक्ट हैपेंस हियर। But one more thing is there, is not the only this thing, one more thing you have to understand, one more thing what comes here, that is in terms of other ecological impact. पानी जब कम हो जाएगा तो नदी में जो मछलियां हैं या कोई भी जो एक्वाटिक एनिमल्स है, जली जीव है, उन पर भी प्रभाव पड़ता है, उन पर भी इफेक्ट होता है। अब अगर हम एक चेक डैम बना ले, चेक डैम, दिस प्रॉब्लम विद द कर्नाटका एंड तमिलनाडु इज दैट कावेरी river and that Peniyar river, they're making check dam, so diverting more and more water, there will be very less water in this side, नदी यहाँ सूख जाएगा, यहाँ पर या पानी बहुत कम हो जाएगा।
तो वहां पर ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और पानी कम होना केवल इंसान को असर नहीं, जो एक जली जीव है उनको भी असर पड़ेगा। इज नॉट दैट ओनली ह्यूमन एंड आवर इकोनॉमिक यूज, आवर सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट, व्हाट विल हैपन टू द एक्वाटिक एनिमल्स if the river get dried up? तो many of the biodiversity of the river will get lost. इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, वो डायमेंशन को समझना बहुत जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस काइंड ऑफ डायमेंशन देयर, बट व्हाट आई वुड लाइक टू से हियर, दिस डायमेंशंस हैव टू बी अंडरस्टूड। आर्टिकल गिव यू पर्सपेक्टिव। हम लोग डेली न्यूज फीड में आप लोग को समरी क्यों नहीं देते हैं? बना बना के समरी देते हैं, रेडीमेड स्पून फीडिंग वो क्यों नहीं करते हैं? आप पहले आर्टिकल पढ़ो। आर्टिकल पढ़ने से पर्सपेक्टिव डेवलप होता है, इनसाइट डेवलप होता है। बुलेट पॉइंट पढ़ के कुछ नहीं हासिल होगा, समरी पढ़ के जो कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक आप आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे यू विल नॉट डेवलप पर्सपेक्टिव। दिस व्हाट आई वांट देयर, ये सारी चीजें। तो जब आप ऐसे आर्टिकल्स पढ़ते हो, सेक्शन नंबर, नेम ऑफ द एक्ट, तो दैट रियली गिव्स यू, दैट इज व्हाट द हियर कम्स Interstate River Water Dispute Act. Interstate River Water Dispute Act. So you got a very important thing here. Interstate River Water Dispute Act. ये कानून है 1956 का, सेक्शन 4, राइट? Resolution of dispute. For that committee is formed through a committee by both state government, by both the state governments. तो ये चीज जब आप पढ़ते हो तब आपको आइडिया लगता है, ठीक है? हाँ, आप पूरा न्यूज में नहीं, तो आपको फिल्टर्ड न्यूज दिया जा रहा है, आपको न्यूज फिल्टर्ड दिया जा रहा है। यू आर गेटिंग द फिल्टर्ड न्यूज, and that will take just 30 minutes time to read वो चीज है, this law which is comes here. Anyway, let me move to the next topic. अगला टॉपिक पे आते हैं। कोड का जो चीज वहां दिया हुआ है, तो नेक्स्ट वन इज दिस वन अगेन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आवर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ने अपना दिया, सीजीआई ने दिया। अब यहाँ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवेल्स अ कमेमोरेटिव कॉइन ऑन द ओकेजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे यस्टरडे। एक कॉइन जो है, कॉइन सिक्के, उसको अनवेल किया गया, जनरल नॉलेज जीके ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो यहां पर ये चीज, नेशन फर्स्ट विल कीप अलाइव, प्राइम मिनिस्टर जो का कहना है वहां पर है। तो ये चीज एट इवेंट मार्किंग 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन, मैंने बताया तो 1949, 26 नवंबर 1949 एंड 26 नवंबर 2024 इज 75 ईयर्स, 75 साल हो गए अपने भारतीय संविधान को अडॉप्ट करने का। 26 नवंबर 1949 1949 वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड टुडे, राइट, यस्टरडे 26 नवंबर 26 नवंबर 19 that time and 2024, 75 years landmark year. And you know 1950 से constitution came into effect, what we celebrate 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, that comes. So that is where the parliament में ये that was a conference, है ना, सारा कुछ event हुआ था, तो उसमें article this you can read there, right? That was you can read there. So constitution पे again lot of things have covered in the news, environment science tech. अब यही चीज मैं बार बार कहता हूँ, what I want to always say, अगर आप रोज न्यूज पर पेपर पलटते हो, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं. Now look at environment and science and technology. In 1 week, 7 days, there will be at least minimum 4 to 5 articles. In 1 month, it will be 20-25 articles. And in 1 year, if I take average 20 articles, science, tech, environment, 20 into 1 year, 12, or with 250 articles. कोई भी क्वेश्चन, any question on environment, science, tech, from this 250 articles you have done, environment, science, tech, and you have already covered your syllabus, science, tech, and environment. You are the one to solve it. You are the one to get the answer.
आपके लिए प्रीलिम्स एग्जाम इजी वॉक, केक वॉक, फटाफट सॉल्व होगा, इजिली यू विल सॉल्व इट, रादर देन वो मैगजीन लास्ट में मार्च अप्रैल के महीने में मैगजीन उठा के पढ़ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं। कितने होंगे? कुछ आर्टिकल्स होंगे, बस काम खत्म, वो भी जिस्ट, नो पर्सपेक्टिव, नो अंडरस्टैंडिंग, रट्टाफिकेशन, द एंड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग एवरी डे, ठीक है? आई एम देयर टू सपोर्ट यू, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। मैं आपको मदद कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ ये सारी चीज़ों को समझने में, ठीक है? तो देवघर IAS अकेडमी दिया का अभी साइंस टेक मॉड्यूल चल रहा है। दोज हु आर इंटरेस्टेड, बाइलिंगुअल हो रहा है, हिंदी इंग्लिश, कैन कॉल अस, दिस 9162, दिस नंबर इज देयर। और इसके बाद इन्वायरमेंट मॉड्यूल विल स्टार्ट, राइट? तो फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉड्यूल followed by there will be environment module. For first 50 students there 50% discount, right? इसके लिए ये ऑनलाइन मोड में हो रहा है। अगर आप देवघर में आके, ये क्लासरूम है, दिस इज द क्लासरूम, अगर आप ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हो तो आप आ सकते हो। बाइलिंगुअल मोड, इंग्लिश एंड हिंदी, राइट? बोथ लैंग्वेजेस, and it is both offline as well as online hybrid mode. ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होगा। आप यहाँ आके पढ़ना चाहते हो तो क्लास में सुबह मॉर्निंग 10 AM बच्चे बैठ के पढ़ते हैं यहाँ पर। द स्टूडेंट सिट हियर एंड दे स्टडी द प्रोग्राम देयर, एंड इफ यू वांट टू डू देन थ्रू Zoom, through online you can connect with the, here there is a panel where I am seeing right now, so you can join through the interactive class, live interactive class. There's a live interactive class, and you are getting recorded video also there, with recorded videos. और आप जान के हैरान हो गए, 5,000 खाली फीस है, 5,000, 50% डिस्काउंट वगैरह जो है, तो दैट मीन 5,000 में आप दोनों कोर्स कर पा रहे हो। रिकॉर्डेड वीडियोस आर देयर, एंड यू कैन इंटरेक्ट विथ मी डायरेक्टली लाइव ऑनलाइन, राइट? दिस गोइंग ऑन देयर, so you can call us. There's the number is this one, 9162 500 508, ये नंबर। तो those who are interested, जो लोग चाहते हैं कि बेहतर तरह से करें, तो they can contact us, ठीक है? दिया में यहाँ पे चल रहा है, below also their number is given, right? So anyway, कल फिर हम लोग मिलेंगे, ठीक है? Tomorrow again I will meet all of you, ठीक है? I think ये जो प्रयास मैं कर रहा हूँ, at least going through the important headlines and giving you the perspective in some of the important topics that really help you in your exam preparation. ये जो प्रयास है, आप लोग है ना, थोड़ा मदद करें, तो आप इसको जुड़ें। और मैं ये कहता हूँ, प्लीज़ जब आप चैनल में आते हो, सब्सक्राइब करो, यू सब्सक्राइब इट, और बेल आइकन जरूर प्रेस करो। वाई प्रेसिंग बेल आइकन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज यू विल गेट नोटिफिकेशन। जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, यू गेट नोटिफिकेशन। और हाँ, शेयर भी कीजिए, राइट? शेयरिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो दैट मेनी स्टूडेंट्स हु आर सिंसियर स्टूडेंट्स कैन गेट बेनिफिट ऑफ दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव ऑफ डेली न्यूज फीड, DNF, एंड द डिस्कशन इन द चैनल, राइट? जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, एंड पर्टिकुलर आई एम ट्राइंग टू डू इट। आई होप ये आपको रियली हेल्प करे, एंड आई नीड योर सपोर्ट, ठीक है? सो विल मीट अगेन टुमारो, कल फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सबा खैर, मजे से। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।